Good morning, dear students. In this chapter, we have completed the whole respiratory system, mechanism for the inhalation as well as exhalation. Then after we have discussed about the process of exchange of gases, that how the gases will be exchanged, and respiratory volumes and capacities. After discussing all these important topics, now it is very important to understand that how the mechanism of respiration is regulated in our body. हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म है वो एकदम ही रेगुलेटेड मैकेनिज्म होती है. दैट इज आफ्टर एवरी इनहेलेशन वी विल बी एक्सेलिंग, राइट. तो इनहेलेशन जो होता है दैट इज गोइंग टू इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, दैट इज respiration is going to occur about 12 to 14 times in a normal healthy person. In an infant, this respiration is going to occur 44 times in a minute. So this regulation, this respiration is very much regulated process, and this regulation is done by two methods: neural regulation and chemical regulation. So respiration is regulated by neural regulation and secondly by chemical regulation. मतलब दोनों ही, हमारी नर्वस सिस्टम भी रेगुलेट करती है as well as the chemicals like carbon dioxide and H plus are also being detected in our certain major arteries, and so that also shows a chemical regulation. So first we are going to talk about the neural regulation. Now neural regulation means the regulation is going to be done by our nervous system. हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगी. तो फॉर द न्यूरल रेगुलेशन देयर आर स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड द पोन्स वेरुली. सो स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स are present in medulla oblongata and pons varoli. तो हमारे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स वेरोली ये हमारे पार्ट्स हैं ऑफ द हिंड ब्रेन. ठीक है, तो हिंड ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वहां पे स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स लोकेटेड हैं, एंड दिस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आर नोन एज रेस्पिरेटरी सेंटर्स. दिस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, इन्हें क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर्स. तो हमारे पास ऐसे दो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हुए, एक हुए मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स और दूसरे हुए पॉन्स रेस्पिरेटरी सेंटर्स. मतलब दो तरह के रेस्पिरेटरी सेंटर्स इसीलिए हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर्स दोनों पे हैं. मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एंड पॉन्स में भी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, जिसकी वजह से हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? वी हैव टू रेस्पिरेटरी सेंटर्स, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स एंड पॉन्स रेस्पिरेटरी सेंटर. मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर. अब मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर नाम से ही पता चल रहा है that it will be located where? In the medulla. But this medullary respiratory center includes a dorsal center, a dorsal respiratory center and a ventral respiratory center. तो है तो दोनों मेड्यूलरी ही, पर एक डॉर्सल साइड पे है और एक वेंट्रल साइड पे है. सो एक डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड of medulla, where it is located on the dorsal side of the medulla, and its function is to regulate our inspiration. What does it regulate? Inspiration.
इंस्पिरेशन को ये रेगुलेट करता है। मतलब जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है। ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दो जगह पे है, मेड्यूला में है और पॉन्स में है। मेड्यूला में जो है, तो मेड्यूला में भी दो सेंटर्स हैं, एक डॉर्सल साइड पे और एक वेंट्रल साइड पे। जो डॉर्सल साइड पे है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। एंड द वन विच इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड, दैट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। The ventral respiratory center will be present on, or you can say located on the ventral side of the medulla. And secondly, it regulates both inhalation and exhalation. Regulates both inspiration and expiration. दोनों ही regulate करता है, ठीक है। Because there will be a set of neurons which are going to be activated. If the inspiratory neurons are activated, inspiration is regulated. If expiratory neurons are activated, expiration will be regulated. तो ये तो हो गई medullary respiratory centers की बात। दूसरे जो respiratory centers हैं, they are pons respiratory center। अब पॉन्स में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर में दो सेंटर्स आते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर। सो दे इंक्लूड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। This pneumotaxic center is located on the dorsal side of the pons, and pneumotaxic center is mainly for regulating, or you can say limiting the inspiration। मतलब हम जब एयर को इंस्पायर करते हैं तो we are able to inhale the air only up to certain limit, right? We cannot constantly inhale for a long time. After a deep inhalation we have to stop because the volume or the pressure, atmospheric pressure that is in our lungs, pulmonary pressure is going to be increased, and after which beyond this level you are not able to inhale. So that is limiting the inspiration is the function of pneumotaxic center. And same way there is another center known as apneustic center, और apneustic जो center होता है that is for the controlling the depth of inspiration, controls depth of inspiration, right? So set of neurons will be in the neural regulation। दो तरह के ये सेट ऑफ न्यूरॉन्स को कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स। दो तरह के रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, एक मेड्यूला में है, एक पॉन्स में है। मेड्यूला के अंदर दो सेंटर्स हैं, पॉन्स में भी दो सेंटर्स हैं। मेड्यूला में जो पहला सेंटर है वो है डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, जो मेड्यूला के डॉर्सल साइड पे है, और वो क्या करता है, इंस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। वेंट्रल साइड पे जो सेंटर है वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को रेगुलेट करता है। पॉन्स में दो सेंटर्स हैं, न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक। न्यूमोटैक्सिक जो है वो हमारा इंस्पिरेशन को लिमिट करता है, और एपन्यूस्टिक ऑल्सो controls the depth of the inspiration, how deep you are able to breathe. So that depth of inspiration is controlled by apneustic center. तो ये हो गया न्यूरल रेगुलेशन। सेकेंडली हमारे पास है केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन, तो केमिकल रेगुलेशन में आ जाता है केमिकल रिसेप्टर्स, जिन्हें कहा जाता है केमो रिसेप्टर्स। So specialized chemoreceptors are located in carotid artery and aortic arc। स्पेशलाइज्ड केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल को आइडेंटिफाई करते हैं,
और ये कहाँ पे लोकेटेड है, जो कैरोटिड आर्टरीज है वहां पे और जो एओटिक आर्क है वहां पे, ठीक है, दैट इज लोकेटेड नियर योर हार्ट। तो ये जो दो जगह है वहां पे स्पेशलाइज रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर्स को केमिकल रिसेप्टर्स या केमो रिसेप्टर्स कहा जाता है एंड दे check the level of CO2 and H+। किसका लेवल चेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का। मतलब if the amount of carbon dioxide coming to your heart is high, that indicates that in your body there is more amount of carbon dioxide which has to be removed। सो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होना मतलब H+ जो है उसका ज्यादा होना, तो ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाता है। सो दैट इमीडिएटली रिकॉग्नाइजेज दैट देयर इज सम फॉल्ट, देयर इज सम चेंज व्हिच हैज टू बी इमीडिएटली ऑल्टर्ड, राइट। एंड दे stimulate, once they recognize the change, they stimulate the respiratory centers located in medulla। मतलब एक बार कोई चेंज रिकॉग्नाइज किया उसके बाद वो सिग्नल किसे भेज देते हैं, मेड्यूला को सिग्नल भेज देते हैं। मतलब मेड्यूला में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं उन्हें ये सिग्नल भेज देते हैं दैट नाउ इट इज द टाइम फॉर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। Okay, so that is how neural regulation and chemical regulation is being done. In the next lecture, we will talk about the disorders associated with our respiratory system.